Hello everyone, welcome to my channel Social Itihas. Today we're going to start with class 10th Economics chapter 2 Sectors of Indian Economy, which is coming in your term 1 exam, which will going to be held in the month of November December as per the CBSE new exam pattern. So let's get started. Before starting the chapter, we should know the meaning of each word. So sectors means division of Indian. We are talking about India and about division of sectors in India and economy. So now what is the meaning of economy? Economy आपने बहुत बार नाम सुना होगा, economics, economy 9 से सुनते आ रहे हो, लेकिन क्या कभी सोचा economy का actual meaning क्या है? So economy is something which means managing the financial transactions, which includes production, consumption, banking system, distribution of goods, day-to-day transactions. All these things are part of economy. For example, let's suppose we are going to buy a packet of biscuit. Okay, we are going to the market to buy a packet of biscuit. So when we are going to the market to buy a packet of biscuit, so we are dealing with money because I'll be giving the money to the shopkeeper and in return he will be giving me a product that is biscuit. So that is also a part of economy because it is impacting the economy as a whole in broader terms. So let's get started. Let's quickly jump into my screen. Sectors of Indian economy. So in this chapter, we will going to cover the different sectors of Indian economy, gross domestic product, that is GDP, historic changes in the sector, division of sectors on the basis of employment, division of sectors on the basis of ownership, and how to create more employment. So in our day-to-day life, we see that people are involved in different activities. Like in this picture, we are able to see that a person is involved in agricultural sector, a person is cultivating the fields. In this picture, we are able to see that cars are getting manufactured. In this picture, we are able to see that somebody is trying to deliver a box. And in this, we are able to see that there's a street market and sale and purchase is going on. So let's go to the previous example. As I told you in the very beginning, that we go to the market when I was explaining you the meaning of economy, I told you that we go to the market to buy a packet of biscuit. So when we go to buy a packet of biscuit, have you ever thought that how a biscuit is being made? Biscuit बनता कैसे है? फ्लावर से बनता है. फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर कहाँ से आता है? वीट से आता है. वीट कहाँ से आता है? वीट फार्म से आता है. फार्म पे कौन काम करता है? फार्मर्स पे काम करता है. हमने अभी थोड़ा सा उल्टा रिवर्स में लिया हमने अपनी गाड़ी को. राइट, आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ? फार्मर ने एज अ रॉ मटेरियल वीट दे दिया. वीट वीट को तो हम डायरेक्टली नहीं खाते. बिस्किट के क्या करते हैं हम? वीट प्रोसेस होता है फर्दर, उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स और ऐड होते हैं. पहले वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, फिर उसके साथ शुगर, ऑयल, कुछ एसेंस वगैरह डल करके फिर बेक होता है. तो फार्मर ने दे दिया रॉ मटेरियल एक सेकेंड पर्सन को, जो कि अपनी फैक्ट्री में या अपनी इंडस्ट्री में वो क्या कर रहा है? उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहा है एक गुड बनाने के लिए. और अभी के लिए हमारा गुड है बिस्किट. अब बिस्किट जब बन गया तो हम डायरेक्टली कंपनी जाके तो नहीं खा रहे जहाँ बन रहे हैं, जहाँ बेक हो रहे हैं बिस्किट्स. उसके लिए एक थर्ड पर्सन आता है, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो. वो क्या करते हैं? बिस्किट जब बन गए फाइनली पैक भी होगा. सो पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट होकर के गुड्स पहुंचेंगे. तो हमने देखा इस एग्जांपल में, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एग्जांपल ऑफ बिस्किट, वी सॉ different people involved in different activities like we are able to see in this picture. So let me just relate. So basically there are three sectors of Indian economy. First is primary, other one is secondary, and the third one is tertiary. Now again moving on to the same example. अब farmer ने जो रॉ मटेरियल, जो वीट प्रोवाइड की है, वीट को एक्सट्रैक्ट किया है, क्रॉप वीट को ग्रो करके जो एक्सट्रैक्ट किया है और नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया है एक गुड बनाने के लिए, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई प्राइमरी सेक्टर. एंड प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर. ओके, सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर वुड बी कॉटन, कॉटन कल्टिवेशन. जैसे हम कॉटन को यूज करके वी आर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, हम और गुड्स को बना रहे हैं कॉटन को यूज करके. सो दैट इज ऑल्सो माई कॉटन वुड बी माई रॉ मटेरियल. So that is a part of primary sector. Other examples of primary sector could be quarrying, mining, animal husbandry, right? Then dairy and milk products are also part of secondary sector. So dairy hota kya hai? Dairy is something which is dependent on the biological process of the animals, and definitely it also depends on the availability of fodder. अब भाई fodder क्या होता है मैम? Fodder क्या होता है? Fodder जो गाय भैंस का जो चारा होता है उसको हम fodder बोलते हैं. Okay.
And it also includes minerals and ores because that is also extracted naturally. That is a natural process. Now, the question clicks in our mind. Why we call them primary? इसे primary क्यों बोलते हैं? हम कुछ और भी तो बोल सकते हैं, हम primary क्यों बोल रहे हैं? Yes. Now, primary हम इसलिए बोल रहे हैं because this is a base. ये जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दैट इज फॉर्मिंग द बेस. वी आर यूजिंग इट एज अ बेस टू मैन्युफैक्चर और टू मेक अ फाइनल good. That is why we are calling it as primary. And again, I'm telling you that primary is also known as agricultural sector. Now, secondary sector, this is the second sector. अब क्या हुआ? बिस्किट बन गया, फार्मर ने रॉ मटेरियल दे दिया, वीट को दे दिया सेकंड पर्सन को. अब उसने क्या किया? उसको बिस्किट बनाना है. उसने अपनी कंपनी में जाकर के, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में जाकर के, कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी, उसने अपनी इंडस्ट्री में जाकर के वीट को प्रोसेस किया, उससे आटा बनाया, आटे को यूज करके फर्दर उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स को ऐड करके बिस्किट बनाना शुरू किया. तो प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल का, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैं रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ टू मेक अ और टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट और service. So that is my secondary sector. And secondary sector is also known as industrial sector. Okay. And this is the next step after primary. क्योंकि जब primary हो गया उसके बाद secondary का role आता है, right? And we all know कि कुछ भी raw material को हम ऐसे तो use नहीं करते. जो भी चीजें हम final good को जो use कर रहे हैं, उसके लिए उसका manufacturing होना बहुत जरूरी है. That is why we always say that manufacturing process is very, very essential, right? अब मैन्युफैक्चरिंग जो है, इट कुड बी इन द फैक्ट्री, इट कुड बी एट द वर्कशॉप, और इट कुड ऑल्सो बी एट होम. नाउ द अदर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर वुड बी लाइक, हमने कॉटन को क्या किया? कॉटन प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है. अब उस कॉटन प्लांट को हमने क्या किया? उसको हमने फर्दर प्रोसेस किया, फाइबर में कन्वर्ट करके उसको स्पिन किया, उसको वीव किया, एक उससे कॉटन से एक कॉटन शर्ट बनाने के लिए, कॉटन की बेडशीट बनाने के लिए, कॉटन का कुर्ता बनाने के लिए. सो वो कॉटन के कहाँ से होता है? कॉटन के प्रोडक्ट को पहले हम कॉटन प्लांट से कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं आगे स्पिनिंग वगैरह करके, वीविंग वगैरह करके, और उससे हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट. नाउ शुगर, जो हम चीनी खाते हैं, हम वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वी ऑल आर वेरी फॉन्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ अस आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स. तो स्वीट्स में जो शुगर यूज होती है वो कहाँ से मिलती है हमें? वो हमें मिलती है शुगर केन से. सो वी आर यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल टू मेक शुगर, गुड़ और खंडसारी. Now, bricks is also used for construction, so that is also an example of secondary sector. So, secondary sector के कुछ examples would be construction or manufacturing. These are the two major examples of secondary sector, and it is also known as industrial sector, as I told you. Now, we move on to the third sector, that is the tertiary sector. अब हमने क्या किया? इंडस्ट्रीज में सेटअप, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कर लिया और बिस्किट बन गया, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज को प्रोसेस किया, इसलिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला. अब क्या होगा? हम डायरेक्टली कंपनी में जाकर के ऐसी तो बिस्किट नहीं उठा रहे, राइट. हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? वी कैन सी इट इज नाइसली पैक्ड, प्रॉपर बार कोड है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेंशन, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, एवरीथिंग इज देयर, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करें. तो इस दैट मीन्स इसका प्रॉपर पैकेजिंग के लिए वी रिक्वायर समबडी, है ना. हम इसको प्रॉपर पैक भी कर रहे हैं. उसके बाद जब बिस्किट बन गया तो फिर डायरेक्टली कंपनी ना जाकर के हम क्या करेंगे? हम या तो कोई रिटेलर से लेंगे, जाकर के खरीदेंगे, या फिर ड्यू टू पैंडेमिक दीज डेज वी आर ऑर्डरिंग थिंग्स ऑनलाइन, और घर पे बैठ के हमें सारा सामान मिल रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, एक जगह से दूसरी जगह में लेकर के जाना है, तो वी रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. अब ट्रांसपोर्टेशन का मोड कुछ भी हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, रोड हो सकता है, एनीथिंग. और उसके बाद क्या हुआ? जब बिस्किट बन गया तो उसके बाद उन्होंने एक थर्ड पर्सन को दिया, वो होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी होता है, जहाँ पे जाकर के हम फाइनली अपने बिस्किट के पैकेट को फाइनली जाकर के खरीद रहे हैं. सो टर्शरी सेक्टर मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. टर्शरी सेक्टर एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर से हर एक चीज, अगर आप देखो, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कोई चीज बन नहीं पाएगी. अगर रॉ मटेरियल हुआ और हमें उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, प्रोसेस ही नहीं किया हमने, तो उस रॉ मटेरियल का भी कोई फायदा नहीं है. तो उसको प्रोसेसिंग भी एक हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट इनपुट है. उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमने फाइनली जब एक कोई गुड बना लिया, तो उसको फाइनली कस्टमर तक पहुंचने के लिए सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, तभी कस्टमर तक पहुंचेगा, कस्टमर सर्विस, right. So here comes the third, that is tertiary, which is also known as service sector. Now if I talk about other examples of tertiary, so as I told you, transportation of goods. उसके अलावा गुड्स एक बार बल्क में हमने
मैन्युफैक्चर कर रही है, नाउ वी रिक्वायर सम स्टोरेज फैसिलिटी ऑल्सो, हमें स्टोर भी तो करना होगा, ये तो नहीं कि एक ही दिन आज प्रोड्यूस किया तो सारा का सारा आज ही बेच दिया, राइट। शायद हम कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। सो स्टोरेज में भी हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो स्टोरेज ऑफ गोडाउन विल आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब हम एटीएम जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, आवर पेरेंट्स को जनरली, तो एटीएम is also providing services, हम money withdraw कर पा रहे हैं, that is also an example of tertiary sector. Then I'm teaching you, I'm providing you services, right? स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, so that is also part of tertiary sector. Communication, we are communicating with each other, that is also part of tertiary sector, right? So banking is also part of tertiary sector, and it is also known as service sector, which I already told you. So let's quickly revise. In today's session, we have discussed about the three different sectors of Indian economy. First one is primary, which is also known as agricultural sector. Second one is secondary sector, which is also known as industrial sector. And the third one is tertiary sector, which is also known as service sector. मैं बार बार आपको also known as इसलिए emphasize कर रही हूँ because it usually comes in board exams, 1 marker question काफी ज्यादा आता है, and we all know कि इस बार CBSE का जो term 1 हमारा एग्जाम आने वाला है न्यू पैटर्न के हिसाब से, उसमें हमारे सारे MCQs आने वाले, तो ये सारे MCQs, ये सारी चीजों के MCQs they will be asking, right? So that's all for part 1 video. Stay tuned for the next videos, part 2, part 3, part 4, which would be coming shortly. So in the part 2 video, we would going to discuss about gross domestic product in detail and the historical changes in the three sectors, primary, secondary, and tertiary. One more important information, the link to this PPT will be mentioned in the description box below. You can just scroll it down and you can just cross check, and definitely you can use this PPT for writing or for maintaining the notes as well. And all the main points of NCERT have been covered. So if you like the video, do share, like, subscribe. Stay tuned. Bye bye.